ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 9-10 ਵਜੇ ਆਓ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਟਲ ਨੇ 12-12 13-13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। 100 ਰੁਪਈਆ 50-50 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਫਾਸ਼ੀ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੱਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 15-16 ਲੜਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ टाइम पे मैं देख रहे हैं। ताता फरूकी साहब वो मुझे कहता था एक टाइम आएगा जब औरतें मर्दों के पीछे होगी। आज वो टाइम मैंने अपनी आंखों से देख लिया। 100-200 में 13-14 साल की लड़की अवेलेबल है। वो लड़की ने दूसरी मंजिल से छलांग मार दी, वो रोला डर गया। वो जनाब इधर से लात फ्रैक्चर, इधर से फ्रैक्चर, अस्पताल ले गए। वो इंसाफ किए। उसने कहा मैं यहाँ पे आई और मैं सोचा कि मैं अपने लैटर पैड से लिखी हुई है दरख्वास्त कि यकीन को मैंने मार्केट का मैं सदर हाँ, मैं कभी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 9-10 ਵਜੇ ਆਓ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋਟਲ ਨੇ 12-12 13-13 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। 100 ਔਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇਰਾ 100 ਰੁਪਈਆ 50-50 ਰੁਪਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਫਾਸ਼ੀ। ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ ਗੰਦ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਬਾਦ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਕਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਬਹ ਆਇਆ ਕੋਈ ਫਜਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਏਜਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲੋਂ ਖਰਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਅੱਡਾ ਖੋਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 15-16 ਲੜਕੀਆਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ ਥਾਣਾ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਥਾਣਾ ਦਾਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਾਟੀ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਪਾਟੀ ਗੇਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ? ਐਸਪੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ, ਐਸਪੀ ਹੈ ਲੋਰਮਾਲ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਨਾਲ ਲੋਰਮਾਲ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਟੀ ਥਾਣਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਫੀਕਾਬਾਦ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਫੀਕਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਡੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਫਿਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ, ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਪੈਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਅਜੀਬ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 2-4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਧਰ ਆਓ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ नहीं गा। ये क्या कितना कहने के हम बिस्तरी सस्ती हो गई कि 100 रुपए के ओज आप हम बिस्तरी कर सकते हैं, जना कर सकते हैं, इतना बड़ा गुनाह कर सकते हैं। कह रहा हूँ जी आपसे कि मैं मैट्रिक में था, मेरा उस्ताद था फरूकी साहब, वो मुझे कहता था एक टाइम आएगा जब औरतें मर्दों के पीछे होगी। आज वो टाइम मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यहाँ पे आप मतलब 100-200 की वैल्यू क्या होती है। 100-200 में 13-14 साल की लड़की अवेलेबल है। अगर आपने इसका ज़ाहिरी देखना हो तो रात को आप आ जाए, 9-10 बजे आ जाएं। लेने लगी थी हर होटल में ना बच्चों के साथ और खुलेआम। मैं तो इस चीज़ से परेशान हूँ। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे लिया गया था और इसको इस्लामी मुल्क कहते हैं। हमने अल्लाह के नाम पे ये मुल्क लिया हुआ, मगर यहाँ पे यूरोप को पीछे छोड़ गया। अभी मुझे एक बाहर खातून अम्मा जी मिली है, उन्होंने कहा जी मैं सामने नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि ये जो माफिया है ये हमें यहाँ पे रहने नहीं देता। मेरी बच्चियाँ हैं, बेटा मेरा कोई नहीं है। यहाँ पे जो हम बिस्तरी लोग करते हैं, जो लोग उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे बेचे जाते हैं। हकीकतन बात है। ये सामने एक लड़की थी, ये वो फुटपाथ भी सोते हैं, वो बकायदा प्रेग्नेंट होती थी। प्रेग्नेंट ये कारोबार बना हुआ है यहाँ पे। मैं खुद, वो शमूम साहब हैं, वो आपके वही एंकर हैं, वो अक्सर यहाँ पे करते रहते हैं आगे। तो वो लड़की ने साहब कहा जी मैं मतलब ये कारोबार है, ये बच्चा होगा और उसके बाद भेज देंगे। बड़े जोड़े हैं जिनको बच्चे चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसी हालत है कि एक बच्चा अगर माँ बाप से ज़रा सा इधर से उधर हो जाए तो जनाब यहाँ पे वो 20 आदमी उसे घेरने के लिए तैयार हैं। हमारा एक शिकारी है खुडियाँ का, उसकी बच्ची के साथ कोई घर में कोई झगड़ा जुगड़ा, वो लड़की इधर आ गई। वो आई, उसके बाद वो लड़की गायब हो गई। तकरीबन वो 6 माह हमारे पास आते रहे, कभी इधर जाएं कभी थानों में। तकरीबन 9 माह बाद एक दिन उसका फ़ोन आ गया कि जी मैं ये एमयू कॉलेज के पीछे कोई है अपना क्वार्टर है सरकारी, वहाँ पे हूँ। मुझे ये पता है कि वो बातें कर रहे थे कि एमयू कॉलेज के बैग किसी को कह रहे थे। वो मुझे फ़ोन किया, हम चले गए, इस्लामपुरा थाना लगता था, वहाँ हम गए। वो क्वार्टर थे वाकई पीछे, एमयू कॉलेज से थोड़ा सा हट के क्वार्टर थे। उन्हें जा बुशरा नाम, वो लड़की ने तेज तेज आवाज़ें मारनी शुरू कर दी।
वो लड़की ने दूसरी मंजिल से छलांग मार दी, वो रोला डर गया, वो जनाब इधर से लात फ्रैक्चर, इधर से फ्रैक्चर, अस्पताल ले गए। उस लड़की ने इतने खौफनाक वो इंकशाफ किए, उसने कहा मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे एक 70-80 साल की औरत थी, उसने मुझे अपनी बेटी बनाया। उसने कहा बेटा नहीं, घर से भागना बुरी बात है, यहाँ बड़ा गंदा माहौल है, मेरा बच्चा आपको उठा के ले जाएंगे, यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, लिहाजा आप जो है ना मैं आपको आपके घर छोड़ के आऊंगी। वो कहती है जी उसने मुझे इतनी हमदर्दी, इतने प्यार से कहा कि मैंने, मुझे बड़ी अपनाहियत लगी। उसके बाद बाहर एक आदमी था, उसने टोपी पहनी, हाथ में कुरान पकड़ा, तस्बीह पढ़ी, उन्होंने कहा ना मेरा बच्चा कहाँ से आ गई तुम, यहाँ पे तो बड़े दरिंदे हैं। मैं उसके बाद उन्होंने कहा जी मुझे वो बंद में घर पे ले गए, वहाँ पे उन्होंने मुझे कपड़े शपड़े खाना शाना अच्छा मेरा किया पहले दिन। दूसरे दिन जो है ना उन्होंने कहा जी ये हमारे मिलने वाले हैं, ये आ रहे हैं तो इनको तुमने खुश करना है। तो कहती मैंने कहा पता नहीं वो खाना शाना चाहे, तो उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा उस वक्त से लेके अब तक मुझसे सैकड़ों लोग बदकारी कर चुके हैं, साफ सुथरा करके उसे जना करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने बेच दिया, 80,000 रुपये में किसी को फरोख्त कर दिया, आगे वो कई हाथों पे बिकी। आखिर पे जब उन्होंने एतमाद में लिया, यहाँ पे भी वो लड़कों के साथ आई थी, वो उन्होंने देखा जरा माहौल में ये है, जब उसको अपने वालिद का नंबर याद था और रात को लड़के शराब वगैरह पी के सो गए, उन्हें फोन कर दिया घर में कि जी मैं यहाँ पे हूँ, ये लड़के ये कह रहे हैं। वो जब आए, यानी कि यहाँ पे इतने खौफनाक लोग अभी भी घूम रहे हैं जो लड़कियों को, बच्चों को बेटा बना के, बहन बना के, बेटी बना के ले जाते हैं और उनके साथ बदकारी करवा रहे हैं। तो हल क्या है? आप सदर हैं इस मार्केट के, जारी बात है आपकी एक यूनियन होगी, आप इसका हल क्या समझते हैं, कैसे हल हो सकता है इसका? मैंने एक नेकी की थी, उसके बाद मैं बस अब दुआ ही करता हूँ। ईमान का तीसरा दर्जा ये है कि किसी को बुराई देखो तो दुआ। मैंने एक नेकी की, मैं यहीं बैठा हूँ, सामने से लड़का आया पेंचर वाला, उसने मुझे कहा जी एक लड़की है और ये पुलिस वाला से खींच के लाया। मैं आगे चला गया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं कहा हाँ भाई क्या बात है? उन्होंने कहा जी मैं सामने पुलिस हूँ। मैं कहा ये भाटी का एरिया है, छोड़ दो इसे। लड़की ने मुझे कहा मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा है। उसको मैंने पूछा कहाँ से आई हो? उन्होंने कहा जी हासलपुर से आई हूँ मैं। खैर जी उसको मैंने मुतलका थाने, वहाँ बहुत अच्छे SHO लगे थे यहाँ पे, चौधरी वहीद आजम, बहुत ज़बरदस्त आदमी था। उसको मैंने कहा सर इस तरह बच्ची है तो लगती तो कोई 100 में सलाद की है, मगर इस तरह ही लेके जा रहे हैं, गलत हाथों में जड़ी है। उन्होंने मुझे कहा यार ये थाने में भी आएगी तो इसके साथ कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसे अपने घर ले जाओ, अगर नहीं तुम्हारी तो मेरे घर ले आओ। खैर मैं अपने घर ले गया। उस लड़की ने सुबह उठ के अजान दी, नमाजें पढ़ी और बड़ा कोई हाफिज़ कुरान लड़की थी। शार्ट ये कि मैंने उस लड़की को समझाया और हम समझा के 2-3 आदमी उसको उसके घर ले गए। वहाँ से एक गाँव था आगे जनाब, मगर हमने यहाँ से लिखवा लिया था थाने से सारा, हमने एक लेटर लिखवा के वहाँ पे गए, वहाँ थाने में दिखाया, वो हमें गाँव में ले गए। उसने अपनी खाला के घर ले गई, वो जनाब उसने कहा जी ये जो है ना इस तरह लड़का था टीचर, मैं उसके साथ गई और वो सामने होटल में लेकर आया था, वहीं का एक टीचर था। शार्ट ये कि उन्होंने हमारे बैठे बैठे उसके भाइयों ने उस लड़के को मार दिया, लड़के को जो लेकर आया था। हमें उन्होंने कहा आप भी उठो, आप उठो जी। हम वहाँ से, पुलिस हमारे साथ ही, हम बाहर निकले हैं। जब हम वहाँ बाहर आए तो पता चला उन्होंने लड़की को ही मार, बड़े इज्जतदार को। कुछ अरसे बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं सामने बैठा हूँ, वो दोनों भाई आ गए वही। उन्होंने मेरे भी कन पट्टी पे वो 2 नाली थी बड़ी, वो रखी थी उन्होंने मेरी। वो आए इधर, मैंने उन्हें पहचान लिया, उन्हें मुझे उन्होंने कहा सलीम साहब से मिलना है। मैं कहा वो तो इधर नहीं है भाई। मैं कहा पता नहीं मुझे मारने आए। खैर वो 2 मिनट बाद मेरे पाँव में बैठ गया। उसने कहा जी आपने हमारी इज्जत बचाई थी, हम जेल से आए हैं मगर हम आपसे मदद करने आए हैं, आपने तो हमारे साथ नेकी की थी, बड़ा अफसोस है। हमने होता ही है, एक बच्ची से गलती हो जाती है, वो घर से गलती करके एक दफा बाहर तो निकल आती है, उसके बाद बाहर आके उसे जब समझ आ जाती है, लेकिन वापस वो इसलिए नहीं जाती डरती हुए। में से 50 लड़कियां जो बहुत खुशकिस्मत हैं जो बैक हो जाती हैं। तो बैक इसी वजह से नहीं ना होती, उनको पता नजर आ रहा होता है कि हम वापस जाएंगे तो बहन भाई जो कत्ल कर देंगे। इस वक्त यहाँ पे ये पोजीशन है, यहाँ पे एक्टिव है इस वक्त भी गौर। अगर ये करना, पिछले दिनों एक दुनिया चैनल लाए थे तो उन्होंने एक फकीर यहीं पे उसकी मेकअप करा के तोड़ा, तो आगे से वो ग्रोह पकड़ लिया, इधर क्यों बैठा है, 500 दे, 1000 दे। आप कोई लड़की ले आए, मेरे पास ले आए, हम पीछे उसको यहाँ से करा के भेजेंगे, लगा लें। आप देखना यहाँ से शुरू हो गए, हर जगह उसको कोई बेटी कह रहा होगा, कोई बहन कह रहा होगा, ये नहीं कहेंगे कि चल साढ़े नाल। मतलब ये एक ऐसी बात है, और देखो देंदा कर लेना, बेटी बहन उसको कहेंगे और वो जनाब उसको घेर लेंगे। और लोग ये ऐसे लफ्ज हैं कि हर लड़का अगर उसको बेटा करके बात की जाए तो वो नरम हो जाता है, मगर ये लोग ये करके यहाँ पे कई लड़कियों की इज्जतें बर्बाद हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवालिया निशान है हमारी गवर्नमेंट। मतलब हमारे इदारे जो है ना वो बिल्कुल करप्ट हैं। पुलिस जो है ना सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है। मैं एक दिन नाम नहीं लेता, मैं करूंगा इधर, वो कहेंगे ये लोगों को। मैं थाने गया इधर, इन्हीं थानों में, एक थाने में मैं गया तो वहाँ 15-16 बंदे उन्होंने खड़े किए हुए, यहाँ से बाहर से मजदूर पकड़ के ले गए।
وہ جی آخری تیریاں 4 پرچے دے دو، جیب کتری نے 3 پرچے آ رہے تھے دے دو، 2 پرچے آ رہے تھے دے دو، 4 مطلب ایک ہر طرف ایک فارمیلٹی ہے. جیب قطرے اپنے ہیں، ان کو وہ صرف حصہ آتا ہے، جو بے گناہ لوگ ہیں ان پہ ایف آئی آر دی آپ جاتی ہے. کو اپنی